کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ گیس کو دور کرنا ہے تو کشمیری چائے پیجیے۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت بڑھتی رہتی ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھانے سے دل کی نالیاں کھلتی ہیں۔ کاجو کھائیں، آپ کی عقل بڑھے گی اور آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے آپ پھیپھڑوں کے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اچھی طرح آرام کرنے والوں کا چہرہ نیند سے محروم انسان کے مقابلے میں زیادہ اٹریکٹیو اور جوان نظر آتا ہے۔ اب اگر آپ خواب میں خود کو اڑتا ہوا دیکھیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ مرچوں کی جلن کو ہاتھوں سے دور کرنے کے لیے چینی ملے پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ ہچکی روکنے کے لیے ایک لونگ نیم گرم پانی کے ساتھ ملا کر کھا لیں۔ لیمبو کا رس نکال کر برف کے ٹکڑے میں جما لیں اور ضرورت کے وقت اس کو استعمال کریں۔ ناظرین، نمک اور شہد ملا کر دانت صاف کریں، دانت چمکدار ہو جائیں گے۔ جنہیں بخار زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے۔ زیادہ گرم پانی سے چہرہ مت دھوئیں، جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ چہرہ ہمیشہ نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے آپ کو میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کو کاٹ کر اپنے سرہانے رکھ کر سو جائیں، اس سے مچھر آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے آپ کا پیٹ تیزی سے اندر چلا جاتا ہے۔ چھاتی پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے آپ کو خواب میں ڈر نہیں لگتا۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کریں، بال ہمیشہ نرم اور خوبصورت رہیں گے۔ نہانے کی عادت ڈالیں، خالی پیٹ نہانے سے بڑھاپا جلدی حاوی نہیں ہوتا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے زیادہ کھائیں۔ پسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر جریوں والی جگہ پر لگا لیں، جریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ انڈوں کا زیادہ استعمال آپ کے چہرے پر جریاں ظاہر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ سمندری نمک چاٹنے سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ روزانہ 2 کھیرے کھائیں، آپ کو فالج نہیں ہوگا۔ دیے میں ناریل کا تیل ڈال کر جلائیں، کافی دیر تک روشن رہے گا۔ الٹا لیٹ کر مت سوئیں، اس سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر خواب میں آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے تو سونے سے پہلے 1 ٹماٹر لازمی کھا لیں۔ بزرگ کہا کرتے ہیں کہ تنہا رہ لینا کسی برے ساتھی کے ساتھ رہنے سے کئی گنا بہتر ہے۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کریں، آپ کے بال مضبوط اور چمکدار ہو جائیں گے۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے روٹی کے ساتھ پیاز لازمی کھائیں۔ پانی میں لیمبو ڈال کر پئیں۔ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھائیں۔ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم پانی ضرور پی لیجیے۔ کھجور کھائیں، یہ آپ کے دل، جگر، گردوں اور کمر کو طاقت دیتی ہے۔ بلی گھر میں بچے پیدا کرے تو یہ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ جو لوگ زیادہ وقت بیٹھے رہتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے انہیں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ صاف کیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔
गुस्सा बेवकूफ़ी से शुरू होकर शर्मिंदगी पर ख़त्म हो जाता है। मटर ज़्यादा खाएं, क्योंकि मटर खाने से आपकी जिल्द नरम और मुलायम और सॉफ्ट रहती है। जिस औरत की उम्र 40 साल के करीब हो जाए उसे चुकंदर को ज़्यादा मकदार में खाना चाहिए। बीवी हर नमाज के बाद 7 मरतबा या अजीज़ू पढ़े तो शोहर के दिल में उसकी ज़्यादा मोहब्बत पैदा होगी। जो शख्स महीने में 3 मरतबा सुबह के वक्त शहद चाड़ ले वो बहुत सी मुसीबतों से महफूज रह सकता है। अपने हाथों पर दही मल कर कुछ देर बाद हाथों को धो लें, हाथ सॉफ्ट और चमकदार हो जाएंगे। फजर का सजदा तमाम सजदों से पुरसकून है। सूरत यासीन आपको अज़ाब कब्र से बचाती है। सूरत रहमान पढ़ने से अल्लाह घर में बरकत और कुशादगी फरमाता है। आटा गूंथते वक्त नमक ज़्यादा पड़ जाए तो कहते हैं रिस्क में इजाफा होता है। खाना खाने के फौरी बाद पानी पीने से मुकम्मल परहेज़ करें। बकरी के दूध के साथ बादाम खाने से आपकी यादाश्त बहुत तेज़ हो जाती है। अखरोट खाने वाले को सांस की बीमारियों से फ़ायदा होता है। ठंडी रोटी खाने से आपका दिमाग तेज़ होता है। मोटापे और टांगों के खिंचाव वाले अफराद चावल को कम कर दें। सुबह की धूप लेना आपके मूड को बेहतर और डिप्रेशन को कम करता है। किन्नू खाने से पेट की चर्बी आपके काबू में रहती है। अगर आपको नींद ना आ रही हो तो 1 मिनट तक तेज़ी से अपनी पलकों को झपकें। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो पराठे और सफ़ेद आटे से मुकम्मल परहेज़ करें और ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें। अपने गुर्दों की हिफाजत के लिए रात सोने से पहले पेशाब करके सोएं। अगर हलक में मछली का कांटा फंस जाए तो गुड़ का इस्तेमाल करें। मेथी की सब्ज़ी खाने से कमर दर्द में फ़ायदा होता है। दाढ़ी में कंघा करने से आपके दांत मजबूत होते हैं। चेहरे की रंगत साफ करने के लिए एलोवेरा जेल, बादाम का तेल और विटामिन ई का मास्क इस्तेमाल किया करें। अमेरिकी कैंसर सोसाइटी के मुताबिक बहुत ज़्यादा गर्म चाय या मशरूबात पीने से गले के कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ सकता है, इसलिए नीम गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें। बार बार जुर्म आने की सूरत में शाम के वक्त पालक का इस्तेमाल मुफीद समझा जाता है। सेब बाकायदगी से खाने से आपकी सेहत बेहतर होती है। बाजरे की रोटी मैदे की ताकत के लिए इंतहाई मुफीद है। चारों मगज़ का तेल सर पर लगाने से आपको सुकून मिलता है और परसकून नींद आती है। खाने के फ़ौरन बाद सोना, नहाना, फल खाना, चाय पीना मुनासिब नहीं समझा जाता। नमक और जैतून का तेल मिलाकर दर्द वाली जगह पर लगाने से आपको सुकून और आराम मिलता है। अपने कद को बढ़ाने के लिए दूध और खजूर का मशरूबात बनाकर इस्तेमाल करें। खौफ, घबराहट और दिल की तेज़ धड़कन में बादियान फ़ायदेमंद समझा जाता है। मैदे की तज़ाबियत के लिए बादियान का काफ़ा इंतहाई मुफीद है। 2 केले तकरीबन 90 मिनट की सख्त वर्जिश के लिए तवानाई फराहम कर देते हैं। गाजर आपके जिस्म की कुव्वते मुदाफ़त को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। दूध, केला और तीसरा घी दुबलापन दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दमा और खांसी में अमरूद इंतहाई फ़ायदेमंद समझा जाता है। बीमारी के बाद कमज़ोरी दूर करने के लिए चुकंदर या उसका जूस ज़्यादा इस्तेमाल करें। गला ख़राब है तो प्याज का रस इस्तेमाल करें। जूतों को चमकदार बनाने के लिए नींबू का रस मददगार साबित होता है। अरके गुलाब और दूसरा शहद बालों में लगाने से आपके बाल नरम और चमकदार हो जाते हैं। स्टील के बर्तनों में चमक लाने के लिए साबुन में थोड़ा सा नमक शामिल कर लें। कपड़ों पर जंग के दाग हैं तो लस्सी से धोने का टोटका आजमाया जा सकता है। रोज़ाना दालचीनी, शहद और गर्म पानी का मशरूब वज़न कम करने के लिए इंतहाई मौसर है। दांत के दर्द में आप दालचीनी और शहद का पेस्ट लगाने का घरेलू नुस्खा काफ़ी मशहूर है। सुबह उठते ही फ़ौरन तेज़ रोशनी या शोर में आने की बजाय चंद मिनट आहिस्तगी से दिन शुरू करें।
ताकि जिस्म मामूल के मुताबिक आप बेदार हो सकें। रोज़ाना कुछ देर सीधा बैठना और अपनी नशिश दुरुस्त रखने पर तवज्जो दें, इससे आपको जिस्मानी आराम और जिस्म में बेहतरी महसूस होगी। खाने में जायके के मुताबिक सादगी भी रखें। हर वक्त बहुत भारी खाना ज़रूरी नहीं है। घर में पौधे रखना माहौल को खुशगवार, ताज़ा और फ्रेश बना देता है। अगर दिन भर आप ज़हनी काम करते हैं तो मुख्तसर वक्त लेना तवज्जो बरकरार रखने में मदद साबित करता है। पानी आहिस्ता से पीने की आदत बनाएं। बाज़ लोगों के लिए ज़्यादा आरामदेह महसूस होता है। रोज़ाना चंद मिनट अपनी सांसों पर तवज्जो देना ज़हनी सुकून में मददगार साबित होता है। छोटी छोटी अपनी आदतों को मुसलसल अपनाएं, आप बड़े अहदाफ हासिल कर सकते हैं। अपने खाने में ताज़ा अज्जा शामिल करने की कोशिश करें ताकि आपका मामूल बना रहे। नींद के वक्त के करीब बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग इस्तेमाल करना इंतहाई नुकसानदेह है। कभी कभार खामोशी में चाय या पानी पीना भी जहन को हल्का कर देता है। लंबे वक्त तक एक ही जगह बैठने की बजाय हल्की फुल्की हरकत कर लिया करें। सुबह की नरम धूप में चंद मिनट गुजारना दिन का आगाज़ खुशगवार बना देता है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेमकसद जल्दबाजी कम करने की कोशिश करें। खाने के दौरान पानी और गुफ्तगू दोनों में इत्तेदाल रखना माहौल को बेहतरीन बना देता है। अपने कमरे को हमेशा साफ़ और हवादार रखें और आराम के एहसास में इजाफ़ा कर देता है। रोज़ाना कोई एक काम सिर्फ अपनी खुशी के लिए करें, चाहे वो मुतालिया हो या चहलकदमी हो। ज़हनी दबाव के वक्त फौरी फ़ैसलों की बजाय थोड़ा वक्त लेना इंतहाई बेहतर हो सकता है। नाश्ते को मामूल का हिस्सा बनाएं और दिन की शुरुआत बग़ैर जल्दी के करें। जिस्मानी सरगर्मियाँ सिर्फ वर्जिश नहीं, रोज़मर्रा हरकत में ही अहम किरदार अदा करती है। हर बात पर रद्द-ए-अमल देने की बजाय कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना देता है। देर तक बंद कमरे में रहने की बजाय ताज़ा हवा में वक्त गुजारें। रोज़ाना अपने लिए कोई एक हकीकत पसंदाना हदफ मुकर्रर करें। खाने की मेज़ पर पुरसुकून और मुस्बत माहौल रखने की कोशिश करें। वक्त पर आराम करना जिस्म और ज़हन दोनों के लिए इंतहाई अहम है। अगर किसी आदत से फ़ायदा महसूस ना हो तो उसे ज़रूरत के मुताबिक बदलने में हिचकिचाहट ना करें।